हेलो स्टूडेंट, न्यू केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सिग्रेशन, जिसे मेंडल ने प्रपोज किया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर अकर इन पेयर इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, द अदर रिसेसिव। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ सिग्रेशन। इसमें केवल इन 3 पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। This law is based on the fact that the alleles do not show any bleeding and both the characters are recorded as such in the F2 generation, so one of these is not seen at the F1 stage. यह लॉ बेस्ड द मतलब the alleles do not show any bleeding and both the characters are recovered as such in the F2 generation। मतलब टॉल एंड डॉर्फ दोनों करेक्टर F2 जनरेशन में दिखाई दिए थे, तो वन ऑफ दिस इज नॉट इन द एट द F1 स्टेज, जो F1 स्टेज में एक नहीं था। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सन 2010 में। इसके बाद पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी बेयर रिपीटेड यूजिंग ट्रेट इन अदर प्लांट, इट वाज फाउंड दैट समवन द F1 हैड ए फेनोटाइप दैट डिड नॉट रिसेंबल each of the two parent and was in between the two. Inheritance of flower color in the dog flower, Spandrogon or Anthracinum species is a good examination to understand incomplete dominance. Is a good example to understand incomplete dominance। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। ठीक, in a cross between true breeding red flower capital R and true breeding white flowered plant small r, the F1 capital R small r was pink. When the F1 was self pollination, the F2 resulted in the following ratio: 1 capital R red, capital R small r pink, 1 small r white। ठीक, here the genotype ratio exactly as we would expect in any Mendel hybrid monohybrid cross, but the phenotype ratio changed from the 3:1 dominant. Recessive, what happened was the R was not complete dominant over R, and the made it possible distinguish capital R small r as a pink from capital R red and small r wing white। Explanation of the concept of dominance। इसको हम इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। रेड जिसमें कैपिटल R एंड वाइट स्मॉल r के बीच सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, जिससे F1 जनरेशन में ऑल पिंक कैपिटल R स्मॉल r ऑब्टेन हुए। फिर इसका फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 एंड जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। इस लाइन में कुछ खास नहीं है। यहाँ से पढ़ेंगे theoretically the modified allele could be responsible production of the normal less efficient enzyme or a non-functional enzyme or no number enzyme at all, no enzyme at all। ठीक, इस लाइन में कुछ खास नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। Till now we are discussing crosses where the F1 resemble either of the। कोडोमिनेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह इस सन में पूछे गए हैं। ठीक, टू पेरेंट dominance or was in between incomplete dominance
But in the case of codominance, the F1 generation resemble both parent, a good example in different type of red blood cell that determine ABO blood grouping in human being. ABO blood group are controlled by gene, the gene 1. जो ABO blood group होता है कंट्रोल होता है जीन I से, ठीक. The plasma membrane of the red blood cell has sugar polymer that produced from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene I has 3 alleles. I जीन के 3 alleles होते हैं, IA, IB and I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar. I and IB प्रोड्यूस करते हैं शुगर, जबकि एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, जबकि I किसी भी प्रकार का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है. बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ईच पर्सन पॉसेस एनी 2 ऑफ the 3 I genes, allele IA and IB, are completely dominant over I. In the other word, when IA and I are present only IA express. जब IA and I प्रेजेंट होता है तो केवल IA ही एक्सप्रेस होता है, ठीक. बिकॉज I डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि I किसी भी प्रकार का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है. इसी प्रकार जब IB एंड I प्रेजेंट होता है तो केवल IB एक्सप्रेस होता है. बट व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ऑन टाइप ऑफ शुगर. और जब ये दोनों मतलब IA एंड IB प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों शुगर को प्रेजेंट करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस. Hence red blood cells have both A and B type of sugar. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotype of human AB blood types. यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके बाद पढ़ेंगे एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग. यदि IA एंड IA है तो ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप I एंड IB होगा, जबकि ब्लड ग्रुप A होगा. IA IB में जीनोटाइप I एंड IB होगा, जबकि ब्लड ग्रुप AB. इसी प्रकार ये होता है, IA एंड I होने पर ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होता है वो IA I होता है, जबकि ब्लड ग्रुप A होता है. इसी प्रकार इन सब का होगा, ठीक. डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ AB ब्लड ग्रुपिंग आल्सो प्रोवाइडेड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स. AB ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करता है कि अच्छा एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, मतलब मल्टीपल एलील्स का एक अच्छा एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप होता है, ठीक. Here you can see that them more than 2-3 alleles governing the same character. An individual only 2 alleles can be present. Multiple alleles can be found only when population study are made. इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे A single gene product may produce more than one. Either for example star synthesis in a pea seeds is controlled by one gene. स्टार सिंथेसिस में मतलब पी सीड में, स्टार्च सिंथेसिस में मतलब पी सीड में स्टार सिंथेसिस कंट्रोल होता है एक जीन के द्वारा, जिसके 2 एलील होते हैं, कैपिटल B एंड स्मॉल b. स्टार इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार ग्रेन आर प्रोड्यूस इन कंटेंट स्मॉल b. होमोजाइगोट्स have lesser efficiency in star synthesis and produce smaller stage grain. After maturation of the seed, capital B seed are the small seed are ringed. Heterozygotes produce round seed. Heterozygotes produce करते हैं round seed. So capital B seems to be the dominant allele, but the starch grain produce of intermediate size in कैपिटल B स्मॉल b सीड. इसको हम यहाँ समझ सकते हैं, जीन स्टार्च ग्रेन सीड शेप. जीन जब कैपिटल B होता है तो स्टार्च ग्रेन लार्ज शेप एंड सीड शेप राउंड होता है. जब जीन कैपिटल B एंड स्मॉल b होता है तो स्टार्च ग्रेन मीडियम होता है एंड सीड शेप राउंड होता है. इसी प्रकार जब जीन स्मॉल b होता है तो स्टार्च ग्रेन स्मॉल होता है एंड सीड शेप रिंग होता है.
स्टार्च ग्रेन इनकम्प्लीट डोमिनेंट, सीड शेप डोमिनेंस होता है। ठीक,